subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. When I decided to do comedy ना मैंने ये सोचा कि I am an artist. आर्टिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता. मैंने ये सोचा देयर इज नो मेल आर्टिस्ट और फीमेल आर्टिस्ट. आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट. देयर इज अ कपूर खानदान, देयर इज खान खानदान, देयर इज ऑल दीज खानदान्स. आई वांट टू मेक लीवर खानदान, तो वो मेरी एक यस डेफिनेटली जिम्मेदारी थी that I want to take the legacy forward. I've made people laugh, I want to make people cry and I want to scare them also. जॉब करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था. बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए कि कंप्यूटर के पीछे बैठो 9 to 5 जॉब करो, जो मैं कर रही थी, बट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए. वी डिडंट इवन नो कि वी आर जॉनी लीवर्स किड्स. हमको उतना वो रियलाइजेशन नहीं था. Welcome to E-Times TV, Jamie. Thank you so much and hi everybody. So, how has your day been? How are you? I'm doing great. My day is always exciting. अगर कोई exciting चीज हो नहीं रही है, then I try to make it exciting because I love to entertain and I love to keep myself entertained as well. तो जैसे आज I was doing a couple of things. There was some work stuff that I was doing, but उस बीच में I was like, चलो कुछ fun होना चाहिए. तो I pulled my brother. I said, चल नाच मेरे साथ. So we made a dance video and I'm seeing all the love that you guys are giving me. So yes, it's always fun. हम अक्सर आपको देखते हैं, आप और जैसी हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते रहते हो. हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया रहता है. तो how is it, to have this mad family together in having fun, enjoying, and what your mama has to say about it, because I'm sure she's a spectator, she's the audience at your house. She's really hard to please and she's a tough critic. So we keep doing our masti and we keep doing our singing and dancing. हम लोग करते रहते हैं, but we are always scared when mummy has to see the video and my dad has to see the video, because ultimately वही बताएंगे सच, कि कैसे किया, ज्यादा हो गया, थोड़ा कम था, नहीं इतना मजा नहीं आया, क्या कपड़े पहने, मेकअप बकवास था, म्यूजिक थी वैसे. So they are the ones who will tell us the truth. So it's always exciting and my parents don't usually know कि हम लोग करते क्या रहते हैं. तो they'll be like, ये दोनों पागल हैं, इनको करने दो, हम लोग चले जाते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या मस्ती हुई है. तो me and Jessie, because we share a house, तो मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. तो I'm like, I can't sit idle. तो I keep telling him, चल यार ये बनाते हैं, चल वो बनाते हैं, चल गाते हैं, और let's make a singing video, let's do this. And I feel also kind of responsible because इतनी huge audience है यहाँ पर Instagram पर, all my lovely people. I feel responsible that I have to entertain them. बेचारे वो भी कहाँ जाएंगे, वो follow करें मुझे, कहाँ जाएंगे वो, क्या करूँ. So that's I feel because of that I keep myself motivated to do something every day. So your videos started getting noticed during the pandemic. Like everyone was in a lockdown situation था, और आपने सबको बहुत entertain किया है, सबको ऐसे मौकों पर हंसाया है. तो do you think कि ये जो पूरा माहौल था उस वक्त का, it helped you somewhere professionally? Your videos started getting noticed, and how things changed for you after that? तो गायत्री, when the lockdown happened 2 साल पहले, I will tell you, मेरी follower count was only about 90K or 100K. So, but at that time, as an artist, I felt like, what am I doing to entertain my people? As an artist, I felt like मैं तो घर बैठी हूँ, ये सारे लोग घर बैठे हैं, but as an artist, मेरी responsibility है. अगर मैंने जिम्मा लिया है लोगों को हंसाने का, अगर मैं इंडस्ट्री में मैंने स्टेप इन किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों को हंसाऊं, नो मैटर व्हाट, वेयर, विच सिचुएशन आई एम इन. भले मुझे पैसे मिल रहे हैं या पैसे नहीं मिल रहे हैं, विच प्लेटफॉर्म इट इज, टीवी है या फिल्म है या क्या, it is my responsibility to entertain my people who've chosen me to be a comedian for them. So I just kind of took that responsibility 2 years ago, and I was like, it's okay, like I will just make videos. I have these 100K people जो मुझे follow कर रहे हैं, अब मैं क्या उनको दूं, so I was just
doing all this madness, just madness. But I was also keeping myself busy क्योंकि मेरे पास काम नहीं था. सारे आर्टिस्ट घर बैठे थे and I was like, let me make the most of it. जो पहले मैं नहीं कर पाई हूँ, जो जो चीजें मुझे करनी थी जो नहीं हो पाई शायद टीवी पर या फिल्मों में, तो I was like, let me use this platform and let me put out, you know, content that I can entertain people with. And that's how the journey started. And I feel it's such a blessing that I have these wonderful people following me now. We're almost going to be a 1 million family, and I cannot thank God enough and you guys enough for following me and loving me the way they do it. It's just, I feel so blessed. You know, your Rakhi video during that time, I think that was one of the video that, you know, went viral like crazy. So, what kind of responses were you receiving after that? Because it was really great. It was fun watching. So I was home, but Rakhi ji was very actively going out and going to the gym and staying fit. So we were very regularly seeing her videos on YouTube. How she was interacting with the bhajiwalas, how she was buying sabzi, and how she was interacting with the paparazzi and the media people. So I thought it was very entertaining, and a lot of people were watching it also, just like me. I was a viewer and an audience. और she is a true entertainer, I must say. उनको कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, वो सिर्फ कहीं भी कोई भी सेटअप में उनको पकड़ लो, she will just entertain people. तो क्या हुआ, I mean, I was seeing राखी जी, मैं उनको देख रही थी और मुझे इतना मजा आता था ना उनके वीडियोस देखने में, तो मैं कंटिन्यूसली उनके वीडियोस देखती गई. और मेरी आदत है, अगर मैं एक चीज मेरा कहीं अटक गया तो मैं उसी पे लगी रहती हूँ, लूप पे. तो मैं उनको देखती गई और मुझे इतना मजा आ रहा था, ऐसा इस पर कुछ बनना चाहिए. और लिटरली मुझे उनको एक सरप्राइज ही देना था कि उनकी मैंने मिमिक्री कर दी और वो ऐसे हिट ऑफ हो गया, वो ऐसे क्लिक कर गया. और मुझे नहीं लगा था कि लोग इतना पसंद करेंगे, बट लोगों ने बोला यार हम भी यही देख रहे हैं, आप भी फैन हो, हम भी फैन हैं. तो लोगों ने ऐसा दे कुड रिलेट, तो वो एक चीज अलग ही लोगों ने पसंद की. एंड दैट्स हाउ फ्रॉम वन पार्ट इट बिकेम पार्ट 2. सो yeah, that's how it happened, and I'm very happy. Even राखी जी को पसंद आया, उन्होंने खुद वीडियो बनाया अबाउट मी, उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे कि यार यू आर सो गुड, मुझे बहुत मजा आया यार, तुम मेरी मिमिक्री कर रही है, क्या बात है जैनी, वाओ जैनी, क्या तूने किया मेरी मिमिक्री. It was really fun. एंड अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है जब लोग तारीफ करते हैं, एंड मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे ऐसा लगता है यार इसको करते जाओ और इसको बढ़ाओ और कंटिन्यू करो. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. जेमी, ये जो प्यार मिल रहा है, ये इसकी वैल्यू हमें जब बहुत कोई चीज शिद्दत से चाहिए होती है, हम बहुत सालों से उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन समटाइम्स क्लिक होता है, समटाइम्स नहीं. और अगर देर से आपको वो चीज मिलती है तो उसकी यू चेरिश इट मोर. So in your case, if I'm not wrong, the struggle period was really long, if I may say. So, जी, I mean, you know, गायत्री, मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी 2012 में, और अब we are in 2022, तो कितने ही साल हो गए, मैं तो भूल गई. मैं तो कितने लोगों को बोलती हूँ कि मैं 8 साल से काम कर रही हूँ, बट 8 साल कब के गुजर गए. एंड ऑलमोस्ट अभी 10 साल होने आए हैं that I've entered the industry और मैं काम कर रही हूँ. और yes, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत इंतजार किया, बहुत स्ट्रगल, मतलब सबका स्ट्रगल होता है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि मेरा बहुत हाई स्ट्रगल था. सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, अपनी अपनी जर्नी होती है. तो यस, आई हैड माई अप्स एंड डाउन्स. मेरे अच्छे मोमेंट्स थे, मेरे हाईस काफी सारे थे, और ऐसे भी मोमेंट्स थे जहां मुझे लगा शायद मेरा करियर खत्म हो गया. तो ऐसे भी मोमेंट्स थे, बट यस, I feel like I'm in the best phase right now, and I can't thank God enough for what I have today. You rightly said कि सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है. Yeah. लेकिन जिम, आपके साथ एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपके पापा जॉनी लीवर जी, ही इज अ लिविंग लेजेंड. वी ऑल हैव ग्रोन अप वॉचिंग हिम. तो उनके नाम को भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि यार आई हैव टू लिव टू दैट नेम, एंड साइड बाय साइड मुझे मेरा भी आइडेंटिटी क्रिएट करना है. Yeah, right. I feel like जैसे there is a Kapoor Khandan, there is Khan Khandan, there is all these Khandans. I want to make Lever Khandan, तो वो मेरी एक yes, definitely जिम्मेदारी थी, that I want to take the legacy forward. And I also felt kind of
एक एडेड चीज आ गई, बिकॉज मी बीइंग अ फीमेल, लड़की कर रही है कॉमेडी, वो एक अलग एंगल आ गया मेरी लाइफ में। तो वो एक चीज, वो एक अलग ही अलग स्ट्रगल था, यू कैन से। बट आई फेल्ट कि अगर मैं घर की बड़ी हूँ, मैंने जिम्मा लिया है कि मुझे ये लेगेसी फॉरवर्ड ले जानी है, तो आई हैड टू लिव अप टू दैट नेम। इनफैक्ट मैं तो नहीं चाह रही थी कि मेरे नाम के पीछे लीवर लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने इंडस्ट्री में स्टेप इन किया था, मैंने सबको बताया था कि मुझे जेमी जे करके बुलाइएगा, क्योंकि जनुमाला इज माय रियल सरनेम। अगर आप गाइस, जनुमाला इज माय रियल सरनेम गाइस। तो मैंने सबको कहा था कि मुझे जेमी जे के नाम से बुलाइएगा, और क्रेडिट्स में भी इनफैक्ट अर्ली डेज मेरा नाम जेमी जे करके लिखा जाता था। बट देन द पीपल ऑफ द इंडस्ट्री ओनली सेड नहीं ये जे वे कुछ नहीं, आप लीवर लगाओ, बिकॉज आप लीवर हो तो हमको कैसे पता चलेगा भाई। तो इट वाज नॉट इवन मेरी चॉइस भी नहीं थी, ये सब हो गया। अच्छा यार, सब लोग पूछ रहे पापा कहाँ हैं? मैं अपने रूम में बैठी हुई, मेरा इंटरव्यू में मेरे पापा क्यों नहीं है? हाँ, तो यस, इट वाज, आई फेल्ट सो प्रेशर्ड, दैट नेम इटसेल्फ वाज सच अ भारी नेम। I was like, man, I'm not myself anymore. I'm like, I have to fight for my place in the industry. At the same time, people are like, तो इनकी बेटी है जी, अब देखेंगे क्या करती है। तो वो एक अलग ही था यार, that was another fight, battle altogether. But yes, I mean, I am where I am today, and people have accepted me, and these guys have accepted me. They love me for what I do. So, and they feel, you know, कि चलो यार, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, ये सही कर रही है जो कर रही है, शी इज नोन फॉर व्हाट शी डज, बट एट द सेम टाइम यस, शी इज टेकिंग दैट लेगेसी फॉरवर्ड, एंड यू नो, क्या बोलते हैं, हाँ, बाप के नाम के, बाप की इज्जत रख ली इसने। So all that battle, everything has been worth it. And yeah. So my next question was like, you know, आपने अभी ही कहा कि being a female comedian is another struggle altogether. Yeah. आपने जब शुरू किया, right now we have a few. The thing is blurring out, the line is blurring out, but still there aren't many. So, and comedy has always highly been male dominated. So tell us something about that. How did you like break that and, you know, make your mark in it? So I'll tell you, back in the day जब मैंने स्टार्ट किया था, तब कुछ कॉमेडी शोज आ रहे थे टीवी पर, ठीक है, जहां पर there was जहां भारती जी की एंट्री हुई, और there were some new comedians and who had female comedians जो आने लग गए थे टीवी पर, वो दिखने लग गए थे, and that was a huge motivation for me also कि यार लड़कियां कर सकती हैं, ऐसी भी बात नहीं है। There were a lot of female actresses who used to do comedy, ठीक है, जो फिल्मों में आती थी, एक्ट्रेसेस दैट वर कमिंग इन मूवीज एंड टेलीविजन that were known for comedy, जैसे even like टुनटुन जी back in the day, and then there was हिमानी शिवपुरी जी जो कैरेक्टर रोल्स करती थी, so there were actresses like that, comedians नहीं थे। definitely जैसे आपने सही से कहा कि there was a male dominated field, but you know what, मैंने उस चीज का प्रेशर नहीं लिया। when I decided to do comedy ना, मैंने ये सोचा कि I am an artist का कोई जेंडर नहीं होता है, मैंने ये सोचा, देयर इज नो मेल आर्टिस्ट और फीमेल आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। सो आई वाज लाइक, आई हैव टू जस्ट, यू नो, फाइट माय बैटल एज एन आर्टिस्ट। आई डिडंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि यार मैं मतलब लड़की हूं, मैं तो ये वो मैंने उसका सोचा ही नहीं। मैं बढ़ गई, मैं घुस गई। बट यस, फिर वो एक एंगल आ गया वेयर आई रियलाइज कि नो, इट इज पीपल सी यू डिफरेंटली। यू कांट, आप क्योंकि आप आ गए हो एज ए कॉमेडियन और आप आर्टिस्ट की तरह आ गए हो, एंड यू वांट टू मेक योर मार्क इन द इंडस्ट्री, बट पीपल स्टिल सी दैट यू आर अ वुमन। तो वो एक छोटा सा स्ट्रगल था, आई थिंक एक माइंडसेट ब्रेक करना था। एंड आई रिमेम्बर जैसे मैं स्टेज पर जाती थी अर्ली डेज, इट वुड टेक द ऑडियंस अ कपल ऑफ मिनट्स, बिकॉज एक परसेप्शन है कि लड़कियां फनी नहीं होती, ठीक है, तो बट आई एम टेलिंग यू, लड़कियां बहुत फनी होती हैं। लड़कियों के पास इतने सारे इश्यूज है ना, जनरली इफ यू जस्ट हियर अ वुमन, शी इज सो कंफ्यूज्ड एंड मेस्ड अप, एंड यू नो, लाइक शी इज क्रेजी, some are like all over the place. We are funny people, so we have funny stories to tell, and तो यस, थोड़ा सा था where people had this thing के कैसे हंसाएगी लड़कियां, तो फनी। मैंने सुना भी है, कुछ लोगों ने मुझे बोला भी डायरेक्टली, यार लड़कियां फनी नहीं होती, ट्राई मत करो।
But yes, I was like, I'm not going to let that affect me. I'm just going to do what I know what to do, and I'm just going to do that. तो फिर बस मैं लगी रही, and I didn't let that bother me at all. I feel like these thoughts जो लोग डालते हैं आपके दिमाग में, अगर आपको उस चीज को लेकर बैठ जाना है ना, तो फिर आप you can't move forward in life. You just got to like, you set your mind to something and just do it. तो जब ऐसे मौके आते थे तब आपके डैडी आपको कैसे सपोर्ट करते थे? हाउ हैज ही बीन विथ यू ड्यूरिंग दोस टाइम्स? He was really tough on me. He was very tough on me. Guys, मेरे डैड ने मुझे बहुत डांटा है और रुलाया है. No, he was tough on me because he knew it's difficult. It's difficult here, and he's seen the struggle himself. उनको ये था कि ये लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग जज करेंगे. People will be hard on you because you're Johnny Lever's daughter, who's done 300-400 movies. So people are going to be tough on me. He knew that very well. So he was like, तू बाहर जाने से पहले तू यहाँ रो ले, बाहर, ताकि बाहर रोना ना पड़े. So he was tough on me. He made sure that I understood. I learned it the tough way. I cried before saying every joke. I've been through that, but I'm very happy and thankful कि मैंने वो भी देखा, and because of that मैं tough हो गई. I had to toughen up. And they say comedy comes from tragedy. तो थोड़ी बहुत tragedy मुझे भी झेलनी पड़ी. So it's okay. So it's quite clear that your dad is your biggest critique and your biggest motivator. Yeah. Yeah. ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जहां पर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, like you said, tragedy. You're just upset, we're not in the mood, but you have to perform. Yeah. On stage. Yeah. You have to make people laugh. तब उस वक्त कैसे करते हो? Have there been any instances जहां पर आप बहुत upset रहे हो, but you have to like put a smiling face, make everyone happy on stage? Yeah, I mean, Gayatri, I'm a very emotional person actually. So I can be very like, I can go into a zone and cry and all that. I have my phases. But I mean, I've noticed one thing, that जब काम होता है तो I don't think about what I'm going through. It's just work. At that time, it's just that I have to do this and I have to get this done and I have to give my 100%. मुझे एक किस्सा याद है, जब मैं कॉमेडी सर्कस का एक एपिसोड कर रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी और मुझे बुखार था और मेरा गला बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ था. मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और आपको पता है मेरा काम तो आवाज़ का ही है. मुझे आवाज़ें निकालनी होती है, मिमिक्री करनी होती है, तो दैट इज़ माई जॉब. दैट्स one main thing that I do. तो इमेजिन अगर मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ मेरी आवाज नहीं निकल रही है और बॉडी गर्म हो गया है बुखार से, तो इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन और मुझे बस कुछ ही मिनटों में स्टेज जाना था. एंड आई केप्ट थिंकिंग मैं बेटर हो जाऊंगी, स्टेज पहुंचने तक मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरी हालत बहुत ही खराब थी. उस वक्त मैंने देखा गायत्री कि मेरे साथ मेरे जो को एक्टर थे, सुदेश लहरी जी भी उसी शो पर परफॉर्म कर, उनकी तबीयत तो मेरे से कई ज्यादा बिगड़ी हुई थी. मैंने उस वक्त देखा कि उन्होंने इंजेक्शन लिया और उन्होंने परफॉर्म किया. तो आई वाज लाइक, आई हैव एन एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एन आर्टिस्ट जो इस हद तक परफॉर्म करना चाह रहा है कि वो अपने लिए, मतलब इतनी बुरी हालत में उन्होंने इंजेक्शन लिया, ही वेंट एंड ही परफॉर्म्ड ऑन स्टेज एंड ही डिड अ अमेजिंग परफॉर्मेंस. तो आई वाज लाइक, मैं क्या चीज हूँ, तो उस हालत में मैंने कोशिश की कि मैं भुलाने की कोशिश करूं, and then I just go on stage and perform, and I did it. So I think for us, like, I guess you have to just remember why you're doing it and why you love it so much, and then you should just forget everything and then just perform. So I try to do that. Yeah. अभी हमने रिसेंटली आपको द कपिल शर्मा शो में भी देखा और बहुत 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 पसंद किया लोगों ने उसको. Thank you. In fact, Farah ma'am and everyone, the guests over there, they were so happy to see you. Yeah. So, how was your family and friends reaction? Audience तो प्यार देती है, social media पर बोलती है, पर जो आपके closed ones है, उन्हें कैसा feel होता है to see you receive so much love from the audience? It's just amazing every time जब
we see the response from people, the calls coming in, messages, and जहाँ भी मैं आजकल you know, I go out and people are recognizing me, people are waving at me at signals. तो वो एक अलग ही टाइप ऑफ लाइक आई कांट एक्सप्रेस कि मुझे कितनी खुशी होती है. मेरे डैड जहाँ भी जाते हैं ही ऑलवेज सेज बेटा, पीपल आर ऑलवेज लाइक यू नो दे कम अप टू मी लाइक आपकी बेटी कमाल कर रही है, आपकी बेटी कमाल कर रही है. तो ही फील सो प्राउड. मेरे फ्रेंड्स को मैं ज्यादातर बताती नहीं हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ. दे विल अल्टीमेटली सी इट. जब ऐड आ रहा होता तो इनपे लाइक तू पागल है तो बता कि नहीं, कपिल शर्मा शो, यू क्रेजी, लाइक टेल अस, वी वांट टू सी. दे फील सो प्राउड. फिर मेरे फ्रेंड्स यू नो बैठ के मेरे हर एक एपिसोड दे वॉच एंड दे मेक श्योर दे आर वाचिंग. हर एपिसोड बैठकर देखते हैं. और या मेरे फ्रेंड्स तो मेरे सारे यूट्यूब वीडियोस निकाल कर देखते हैं, आपस में शेयर करते हैं. तो बहुत ही अच्छा लगता है. एंड जब ये मेरे काफी पुराने फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं या कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मेरी जर्नी देखी हुई है. तो जैसे अगर मैं बाहर जाती हूँ रेस्टोरेंट या कहीं और कोई मुझे मिलने आ जाता है तो उनको इतनी खुशी होती थी लाइक यार वी हैव सीन यू क्लोजली. जब तू यू नो जब तू सोचती थी कि यार मुझे कभी एक कॉमेडियन बनना है, मैं बन पाऊंगी या नहीं, वो डे से आज का दिन है जब यू नो लोग आकर तारीफ कर रहे हैं, फोटोज क्लिक करवा रहे हैं. सो इट फील्स रियली गुड. यू नो आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे ये दिन देखने मिलता है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. एवरी डे इज स्पेशल टू मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि you know I have this life and I have this love from people. It's just so good. तो कपिल शर्मा के साथ में कृष्णा अभिषेक और सबके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? You know कपिल सर एंड आई हैव वर्क टुगेदर. हमने उनकी पहली पिक्चर जो मेरी भी पहली पिक्चर थी, हम दोनों ने साथ में काम किया था उस पिक्चर पे और हमारा सीन काफी हिट हुआ था. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बड़े पर्दे पर काम करने का. साथ में वो हो चुका था. उससे पहले वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर, पर वो हो नहीं पाया. तो फिर अगेन उनके शो पर आना इज लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर एनी कॉमेडियन. ठीक है, जब मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे ऐसा लगा कि माय गॉड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है. टीवी पर सबसे बड़ा कॉमेडी शो अगर आज के दिन कोई है तो वो है कपिल शर्मा शो. उसके बियॉन्ड, उसके आगे कोई है ही नहीं. तो जब उन्होंने बोला वी वांट यू, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ और जैसा लगा वाह मैं उस लेवल तक आ गई हूँ where they want me to come, you know, like as an do an entry. मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई रिमेम्बर जब मैं एपिसोड के लिए शूट भी कर रही थी, मैं बहुत नर्वस थी. बट कपिल सर मुझे मिले पर्सनली और उन्होंने कहा जानी तू एंजॉय कर, सारा भूला टेंशन नहीं रहना, बस एंजॉय करना है, बस तू कर अपनी मस्ती कर. तो यहाँ कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई पॉइंट नहीं रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, तू एंजॉय कर, तू चिल कर दो, ठीक है ना, मजे करेंगे. सो ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल. उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया. पूरी टीम बहुत ही प्यारी थी. एंड जो बंकुश अरोरा हैं जो क्रिएटिव हेड हैं, वो उनकी और मेरी फ्रेंडशिप काफी टाइम से है बिकॉज ही यूज्ड टू राइट फॉर मी इन कॉमेडी सर्कस. तो वो आज मतलब वो शो संभाल रहे हैं, ही इज राइटिंग बिग गैग्स एंड ऑल. तो उनके साथ भी काम करने को मिला, तो बहुत अच्छा था. पूरी टीम बहुत प्यारी थी ओवरऑल. एंड कृष्णा भाई हैज एनकरेज्ड मी सो मच. उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया मेरे परफॉर्मेंस से पहले और परफॉर्मेंस के बाद भी. केम एंड ही सेड हमें तूने बहुत अच्छा किया, लिटरली लाइक एन एल्डर ब्रदर. उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और बहुत सपोर्ट किया. तो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी ऑन द टीम. जेमी, बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं है कि आपने मास्टर्स कर रखी है मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में फ्रॉम लंदन. और तो ये कॉमेडी का, एक्टिंग का, डांसिंग का, ये जो पूरा जो पावर पैक है एज जो आर्टिस्ट में होता है, वो बचपन से ही आपका मन था टू डू ऑल दिस? और यू नो आई थिंक बचपन से मैं काफी अटेंशन सीकर टाइप थी. मुझे बहुत अच्छा लगता था लाइमलाइट में रहना, बहुत अच्छा लगता था अटेंशन पाना, और बहुत अच्छा लगता था कि जब मुझे सब देखें. आई रियली लाइक दैट. तो वो एक चीज थी. तो एवरीबडी न्यू इन माय फैमिली. स्कूल और कॉलेज में यस थोड़ी बहुत मतलब स्कूल में मैंने थोड़ा बहुत ड्रामा वामा किया था. बट कॉलेज में मैंने काफी कॉम्पिटिशंस जीते एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, एज अ सिंगर, एज अ डांसर, एज एन एक्टर. बहुत अवार्ड्स मैंने जीते, बहुत पैसे कमाए मैंने कॉलेज में, यू नो, एंड गिफ्ट्स मिले मुझे.
सर्टिफिकेट्स की थप्पी है मेरे पास, जो कॉलेज में मुझे मिली। एंड माय पेरेंट्स आर रियलाइजिंग कि हाँ ये क्रिएटिव है काफी। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने बट बोला कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई तो करनी है। तो मैंने कहा नहीं मुझसे होती, एंड आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई वाज वेरी एवरेज, मैं ठीक ठीक ही पढ़ लेती थी, बट यस मैं मेहनती थी, एक बात तो है। तो आई यूज टू लाइक मैनेज टू पास एंड डू ओके इन कॉलेज, बट उन्होंने कहा नहीं आपको मास्टर्स करना है। और मेरे डैड बहुत ही ज्यादा हेलबेंट थे कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो और सिक्योर हो जाओ लाइफ में, यू नो, बिकॉज उस टाइम पे मैं भी श्योर नहीं थी कि मुझे करना क्या है लाइफ में, आई डिडंट नो। तो एंड आई एम क्वाइट अ लेट ब्लूमर, मुझे बड़ा देर से रियलाइज होता है मुझे क्या करना है। तो फिर हाँ ऐसे हुआ। फिर बाद में मैंने पढ़ाई की, लंदन जाना हुआ, मास्टर्स। मुझे मार्केटिंग पसंद थी, मार्केटिंग कम्युनिकेशन वाज अ सब्जेक्ट ऑफ माय इंटरेस्ट। तो फिर हमने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं, और उनका इट वाज हिज कंडीशन कि मास्टर्स करना ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर वो कर लिया। उसके बाद मेरे मम्मी का कंडीशन था वर्क एक्सपीरियंस लेना ही है, तो ऐसा ठीक है। तो जॉब भी कर ली मैंने वहां पर 2 साल। जॉब करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था, यू नो, बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए कि कंप्यूटर के पीछे बैठो 9 to 5 जॉब करो, जो मैं कर रही थी, बट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए। तो फिर उस टाइम पर मैं क्या करती थी कि आई यूज्ड टू गो एंड वॉच शोज। मैं शोज देखती थी, मैं स्टैंड अप शोज देखने चली जाती थी, मैं प्लेस देखने चली जाती थी, वहां पर थिएटर होता है, म्यूजिकल्स होते हैं, वो देखने चली जाती थी। तो ये सारी चीजें मैं करती थी ऑन द साइड। एंड लकीली मुझे मौका भी मिला कि मैं दो प्रोडक्शन में मैं मतलब आई कुड बी अ पार्ट एज एन एक्टर। तो छोटे प्रोडक्शंस थे, थिएटर प्रोडक्शंस। और मेरा आई डोंट नो, आई गॉट इन टच विद दीस पीपल, फिर उन्होंने मुझे मौका दिया टू एक्ट। तो मैं सुबह जॉब, शाम को थिएटर रिहर्सल, ऐसे यू नो आई यूज्ड टू डू स्टफ लाइक दैट। तो आई वाज हैप्पी दैट मुझे कुछ क्रिएटिव करने मिल रहा है, मुझे एक्टिंग करने मिल रहा है। और आई थिंक बीइंग ऑन स्टेज आई रियलाइज कि यार दिस इज वेयर आई बिलोंग। तो दैट्स हाउ आई थिंक आई काइंड ऑफ डिसाइडेड कि दिस इज इट फॉर मी। आई हैड टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट इट। I couldn't lie to myself anymore कि चलो मैं ये कर लूंगी, हो जाएगा, चलो ये जॉब कर, लाइफ कट जाएगी, but I couldn't lie about it anymore. कंसिडरिंग कि आप खुद इतना अच्छा गाते हो, आपकी फेवरेट सिंगर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अगर कोई है, कौन है वो? There are so many. Growing up, I really loved Michael Jackson. He was my favorite. He's our family's favorite. So we love Michael Jackson. We've seen, you know, my dad used to bring lot of his tapes and stuff. तो हम लोग वो देखते थे growing up. Yeah, and currently I love so many. There are so many singers I really love and admire. I like Adele. I like Bruno Mars. A lot of pop singers that I like. Mixed batch है. Indian singers I love Arijit Singh. Old singers में ghazal singers हैं that I really love. I like Mehndi Hasan ji. I like Ghulam Ali Saab. I like yeah, so many. There are so many. It's a mixed batch. अगर आप मेरा playlist भी देखो ना, it's like mixed. All kind of mixed. Yeah, it all depends on mood. उस वक्त mood कैसा है, बस वही सुनना है. Yeah, what I'm feeling. Yeah. अच्छा, who is more funnier at home? Like घर पर भी आप हमें you, Johnny sir or Jesse, who or your mom, who's more funnier? I'll tell you what, my mom has the best poor jokes. She has the best PJs. Sometimes she has VPJs, मतलब very very poor jokes. So she makes us laugh. But I think Jesse is very like naturally funny like that. He'll just say something. He has the quickest, like he'll come up with some funny one-liners. कुछ punch बोल देगा. Randomly जब वो बात करेगा, he has something funny to say. So he has a very good sense of humor. वो फनी है घर पे naturally. Otherwise me and dad मतलब we are also funny, but mostly I think we are kind of serious. Like my dad is quite serious and quite disciplined like that, and I think I'm also kind of similar to him. Okay, so when you were in school, like you said कि आप आधे से ज्यादा आपके फ्रेंड्स को बताते नहीं हो कि आप क्या काम कर रहे हो, then वो देखते हैं और उन्हें पता लगता है. तो जब आप स्कूल में थे तब भी आप ऐसे थे, लाइक आप बोलते थे लोगों को कि आप यू नो दे न्यू ऑफ कोर्स कि आप जॉनी जी की बेटी हो,
तो would they like befriend you, try to be nice to you, या कुछ ऐसा हुआ है? बट एक्चुअली मेरे स्कूल में ना सारे ही एक्टर किड्स थे. आई वेंट टू वन ऑफ दो स्कूल जहाँ सारे एक्टर किड्स थे. तो लाइक देयर वर ऑल लाइक सेलिब्रिटी किड्स, देयर वाज ऑल द पॉपुलर पीपल के बच्चे एंड ऑल. तो इट वाज दैट काइंड ऑफ स्कूल. तो ऐसा कोई खास स्पेशल ऐसा था नहीं कि अरे इसको बेफ्रेंड कर लो, ऐसा नहीं था. बट यस, लोगों को लगता था कि मैं जॉनी लीवर की बेटी हूँ तो मैं भी इंडस्ट्री में ही जाऊंगी या काम करूंगी. ऐसा लोगों ने अज्यूम, मतलब मेरे क्लासमेट्स ने अज्यूम किया था. आई वाज लाइक इनको पता है, मेरे को नहीं पता मुझे क्या करना है, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है. तो इट वाज लाइक दैट. बट या आई वाज वेरी शाय इन स्कूल. आई वाज वेरी वेरी शाय. आई वाज आल्सो, हाँ, आई वाज वेरी शाय. मुझे बात करना नहीं पसंद था. आई डिडंट वांट टू लाइक बी, आई डिडंट हैव एनीथिंग कूल टू से. आई वाज नॉट अ कूल चाइल्ड. I was just like, hey, bas. But yeah, I think in college I kind of, gathered some courage and, kind of came out, broke out of my shell. Okay. Okay. So, when as a kid you would watch your dad on screen, you watch him act on screen, how would you feel? And did you like look at him and say, मुझे भी ऐसा कुछ करना है आगे जाकर? We didn't watch too many of his movies because मेरी मॉम को I think movies वगैरह में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. तो घर पे हम लोग मूवीज बहुत ही कम देखते थे. हम लोग खेलने कूदने में बिजी होते थे मोस्टली. बट यस, जब हम लोग उनके ट्रायल्स पे या प्रीमियर्स पे चले जाते थे तो दैट वाज लाइक वाओ डैडी इज डूइंग दिस, ओ सो कूल, और शूटिंग पे भी हम लोग बहुत ही कम गए हैं, ज्यादा नहीं, एक आध मूवी शूट्स पर ही गए होंगे. तो इट वाज नॉट लाइक ऐसा कोई वो नहीं था कि माय डैड इज डूइंग दिस. इनफैक्ट वी डिडंट इवन नो कि वी आर जॉनी लीवर्स किड्स. हमको उतना वो रियलाइजेशन नहीं था. I guess, I don't know, maybe kids these days know कि हाँ भाई I'm so and so's kid. We were quite like in our own world. मम्मी kept a very like normal atmosphere घर पे. उन्होंने बहुत normal feel कराया है, भाई चुप तू बच्ची है, calm down, you're normal. It was very normal at home. तो ऐसा feel नहीं हुआ कि we are some filmy person's child या कोई celebrity kid है या कोई king of comedy के बच्चे, ऐसा कभी feel नहीं हुआ. But yes, एक इंसिडेंट था विच माई मॉम नरेट्स, मुझे याद भी नहीं, कि हम लोग शूटिंग पे या कहीं से तो जा रहे थे, मतलब ट्रैवल कर रहे थे एज अ फैमिली, और हम लोग किसी एयरपोर्ट पे थे और बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी. एंड इट वाज अर्ली मॉर्निंग. ओके, तो बहुत भीड़ हो गई थी और सब मेरे डैड के आगे पीछे घूमने लग गए और फोटोज के लिए उनको पूछ रहे थे. तो मुझे काफी, आई थिंक आई वाज वेरी ग्रम्पी एट दैट टाइम. सुबह सुबह आई वाज लाइक नींद नहीं है, आई वाज छोटी बच्ची. तो तो मुझे ना आई वाज वेरी ग्रम्पी, इरिटेट हो रहा था. तो मैंने मम्मी को बोला, आई वाज लाइक मम्मी ये क्या है, एक दिन ये लोग मेरे पीछे भी आएंगे, इज व्हाट आई सेड. हाँ, एंड शी वाज शॉक्ड कि ये बच्ची ये क्या बोल रही है, लाइक व्हाट इज शी सेइंग. एंड शी वाज लाइक ये पागल है, क्या बोल रही है. बट मम्मी रिमेम्बर्स दैट एंड शी सेज कि तूने कैसे बोल दिया यार, तेरी जुबान से जो निकली हुई चीज है आज हम देख रहे हैं. There are people recognizing you and you're a celebrity yourself today, and she's like, that is amazing. So I guess there's power in your tongue, and what you say innocently, it kind of can be true. It comes true sometimes. Yes. ऑडियंस का जो टेस्ट है सिनेमा में और कंटेंट व्यूइंग में वो चेंज होता आ रहा है और अब काफी चेंज हो चुका है. तो आप किस तरह का काम करना चाहेंगी अब मूवीज में एंड ऑल, समथिंग दैट इज स्टिल लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड एंड यू वांट टू एक्सप्लोर दैट? I think I want to, I've made people laugh, I want to make people cry, and I want to scare them also. So I feel like वही बचा है. I think that is that will be a little unexpected if अगर मैं किसी सीरियल में, किसी मूवी में आऊँ और I'm like कातिल मैं हूँ, ऐसा कुछ करूँ तो फिर मजा आएगा. तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट, जहाँ मैं लोगों को सरप्राइज करूँ कि यार जेमी ये भी कर सकती है, वाओ. लाइक आई वांट टू मेक पीपल क्राई, आई वांट टू स्केयर पीपल, आई वांट टू बी लाइक वो, सरप्राइज देम बेसिकली. सो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, एंड आई थिंक दैट इज, आई एम धीरे धीरे ट्राइंग टू डू दैट. मेरा इंस्टाग्राम भी देखो, इट इज लाइक फुल ऑफ सरप्राइजेस. आई डोंट लाइक टू बी पुट इन बॉक्स, आई लाइक टू कीप लाइक चेंजिंग थिंग्स अप. इफ यू थिंक के जेमी यही कर पाएगी तो नहीं, लाइक आई एम लाइक नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. I want to change things up all the time. So that's always my
मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा. There are times, like when jokes go below the belt, comedians are often targeted, especially if the humor is, something it's about the country or about a person. So what do you have to say about that? When and where does a person draw the line? I feel like we have to really just understand what kind of audiences we're serving the jokes to. What kind of audience we're catering to. अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ लोगे तो आपको पता चलेगा वेयर टू ड्रॉ द लाइन. आई रियलाइज दैट हमारी जो जनता है वी आर लाइक अ लिटिल इमोशनल, वी आर वेरी सेंसिटिव, थोड़े सेंसिटिव हैं हम. और यस हम नहीं थोड़ा ज्यादा अगर थोड़ा एक्सट्रीम हो गए एज अ कॉमेडियन, हमने ज्यादा बोल दिया तो उनको लग जाती है बात. तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल लाइक दैट. आई जस्ट रियलाइज ये हमने माई फैमिली हमने ये चॉइस लिया है to serve this kind of comedy, to give this kind of comedy जो can be enjoyed by the entire family together. कहीं कोई ऑफेंस ना ले या कहीं कोई ऑफेंड ना हो जाए, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो. ये हमारी कोशिश है एज अ फैमिली, ये हमने चूज किया है. yes there is an appetite for below the belt comedy. There is a group for insult comedy. There is a niche for political comedy. There's a group for satire. हर चीज के लिए एक ऑडियंस है, हर टाइप ऑफ कॉमेडी के लिए एक ऑडियंस है. And we have comedians who are doing a fantastic job at it. But yes, if they give the same comedy to a larger audience, तो वो acceptable नहीं होगा. तो आई गेस आपको समझना है कि आप कौन सी ऑडियंस को केटर कर रहे हो. अगर वो आपने समझ लिया तो फिर क्या है, आपका गेम बन गया. अब जैसे मैं अगर नेशनल टीवी पे कुछ कर रही हूँ और मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे मुझे पता है लोग थोड़े से वो हो जाएंगे, ऑफेंड अपसेट हो जाएंगे, तो वो रॉन्ग होगा. तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंसेस को क्या देना है, मेरी ऑडियंसेस को फराह खान देना है. सो आई विल डू दैट ओनली ना यार गाइस, कम ऑन यार. Of course, I know you guys like फराह खान, तो वही तो मैं करूंगी ना, वही करूंगी 5, 6, 7, 8 है ना. बस यही है. Okay. So I had this one question that जैसा आपने कहा कि ऑडियंस आपको समझना है, आपकी ऑडियंस को. Yeah. Now everyone has accepted your mimicry. Even जिन पर्सनालिटीज की आप करते हो वो खुद आपको बोलते हैं करके दिखाओ. पर शुरुआत में ऐसा नहीं रहा होगा. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो कुछ लोगों ने कुछ कहा भी होगा, तो नेगेटिव कमेंट्स या कुछ क्रिटिसाइज किया होगा. I think I tell you Gayatri, honestly, जितने भी सेलिब्रिटीज ने मेरा देखा हुआ है काम, उन्होंने मुझे कॉल करके मेरी बहुत तारीफ की. बट होते हैं कुछ उनके फैंस हैं, सेलिब्रिटीज के फैन, जो थोड़े वो अपने सेलिब्रिटी को लेकर थोड़े से उनका लगाव ही अलग है, उनका बॉन्ड अलग है, राइट. तो वो थोड़े से सेंसिटिव हैं, वो उनको थोड़ा बुरा लग जाता है कि अरे इनको क्यों किया आपने, इनके क्यों कर रहे हो मिमिक्री, ये तो हमारा बंदा है, ये तो हमारे एक्टर. तो उनको थोड़ा सा बुरा लग जाता है. तो यस, तो थोड़े बहुत हेट कमेंट्स आते हैं, बट इट्स ओके ना, यू कांट प्लीज एवरीबॉडी. And I have accepted this. I can't please everybody. अगर मैं कुछ कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, शायद 1% लोगों को नहीं अच्छा लगेगा. तो मुझे देखना है कि मुझे कितने लोगों को खुश करना है और कितने लोग पसंद कर रहे हैं. एंड इफ आई एम हैप्पी विद दैट, मेरे 90% ऑडियंस तो एंजॉय कर रही है, उसमें से 5 लोग तो मैं कुछ नहीं कर सकती. तो इट्स ओके वो चीज. तो बट मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले लेती हूँ. अगर उसमें कोई बात है, कोई बोले कि आप ये मत करो, ये गलत है, तो उस पर मैं सोचती हूँ कि हाँ शायद इस पे इन्होंने सही बात बोली, तो मैं आई टेक दैट क्रिटिसिज्म एंड आई वर्क ऑन इट. तो वो एक चीज मैं कर देती हूँ. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जेमी लीवर. आपने जिनको हमेशा हंसाते हुए देखा है लोगों को, आज हमें एक मौका मिला हम उन्हें जान सके कि जेमी एग्जैक्टली हैं क्या एज अ पर्सन. एंड थैंक यू गायत्री, आई हैड अ लवली चैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू जेमी, थैंक यू. Have a safe and healthy life. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye everyone.